अस्सलामुअलैकुम ਵੀਰੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਕੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਰੇ ਅਮਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਮਾਲ ਕਰਦਾ ਵੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਮਾਲ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਥਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਥਾ। ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦਾ। ਜੋ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਿੜਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਜੋ ਭਗਤ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ ਪਾਪ। ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਪਾਪ ਹੈ। और पुचाई गई चोट पलट के वापस आंदी है। दिता होया दुख पलट के वापस आंदा है। रब्बी निजाम, ईश्वरी नियम। किसी ਨੂੰ मनुख दुख दे चुके है तो इतनी गल स्पष्ट है, दुख भोगन ਲਈ तैयार भी हो जाए। ईरानी सूफी संत कह रहे हैं, यार रा खुद करदा रा इलाज नेस्त। जो तू कर चुके हैं ਉਹਦਾ इलाज मेरे ਕੋਲ नहीं है। ਇੱਕੋ ਹੀ इलाज है, भोगन ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। यार रा खुद करदा रा इलाज नेस्त। करदनी ख्वाहिश ओ आमद नहीं पेश। जो तू कर चुके हैं तेरे सामने आवेगा। दुख दे चुके हैं, तेरी चौली च दुख वापस आएगा। किसी की पग लाई है तो तेरे सिर ते सलामत नहीं रहनी। किसी दे रस्ते दा रोड़ा बने, तेरे रस्ते च भी कंडे ही कंडे। रब्बी नियम, ईश्वरी नियम। उस भगत दे अंदर इतना विकास क्यों है? खेड़ा क्यों है? सदीवी खुशी क्यों है? ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਗਏ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਮਿਟਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਦੀ ਛਾਪ ਮਿਟ ਗਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। मिट गई ये धारणा अंदरों। मन विचों सारी बुराई निकल गई, तन विचों सारी बुरी कृत निकल गई। ऐसा क्यों? सुनिए सुनिए दुख पाप का, सुनन करके। परमात्मा का नाम सुनन करके तर्क खड़ी होगी। बड़ा कीर्तन सुने है, बड़ी कथा सुनी है, बड़ी बाणी सुनी है, ना पाप मिटिया। पाप नहीं मिटिया क्योंकि दुख ही आ, तो दुख पैदा हो रहा है पाप तो। दुख दा बीज पाप है और दुख फल है, सुख फल है। अगर दुख सुख फल है तो फिर जरूर इसका कोई बीज है। बिना बीज तो फल किथे? दुख सुख फल है, कर्म बीज है। एक बीज मनुख जमीन दे च बोंदा है, धरती दे च बोंदा है। धरती दा बोया होया बीज ऐसा भी हो सकता है मैं बीजे है, खा कोई होर रहा है, दरख्त मैं लाया है,
ਛਾਂ ਤਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੀਜਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੀਜਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਦਾ ਧਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਓ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਤੀ ਦਾ ਧਨ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤੀ ਦਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਕਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੀਣਾ ਆਖਣਾ ਪਿਆ। ਮੀਣਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਕਰ ਕਰ ਢੇਡਕ ਬਰਲ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਜਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यों झगरत पाप। गुरु रामदास जी, ये तो पाप है तू करदा। एक वक्त दा अवतारी पुरुष और एक उसे ही अवतार नाल अपने पिता नाल ही झगड़दा है। पिता दी दौलत, धर्म दी दौलत वसीयत दे पुत्र ਨੂੰ नहीं ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। अगर ऐसा होंदा तो गुरगद्दी ते गुरु नानक श्री चंद ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्रहलाद धार्मिक है, रब्बी रस नाल भिजिया होया उसका हिरदा, श्वास श्वास नाम जपण वाला। और गुरु ग्रंथ साहब तो पूछो नाम किवें जपीए, तो कबीर कहंदे ने राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। 70-80 साल दे बुढ़े रब दा नां इंज जप जिवें 5 साल दे बच्चे प्रहलाद ने जपिया, ध्रुव ने जपिया। कमाल इस बच्चे तो प्रेरणा ली है, और 5 साल दे बच्चे तो। कबीर कहते इंज जप जिवें ध्रुव ने जपिया, इस तरह जप जिवें प्रहलाद ने जपिया। प्रहलाद की बड़ी कोशिश, ये जो रब्बी रस मेरे कोल है, मेरे प्यो कोल भी होवे, तो प्यो कोल नहीं सी। प्यो हरनाकश दुष्ट, पुत्र वकत दा सज्जन भगत, पिता दुष्ट। लेकिन पुत्र भगत है। ये ओ दौलत है वंडी नहीं जा सकती, प्रेरणा दी जा सकती। अगर वंडी भी जा सकती तो दुनिया च एक कोई अवतार की लोड़ सी, इतने अवतारां की लोड़ नहीं सी। ये मैं करते हैं, एक कोई अवतार ने जगत की झोली च पा देना सी ते अगों लोकी दूजियां की झोली च पा देंदे नहीं। इस वास्ते एक आलम कहता है, हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम लेकिन आदमी अब तक भटकता है। हजारां अवतार आ चुके ने, लेकिन मनुख ते अज भी भटक रहा है। बंदे दे पल्ले ते अज भी धर्म कोई नहीं। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, वाकई जिन्हां कोल रब्बी रस है वो सैकड़ियां च एक दो नहीं, हजारां च एक दो नहीं, करोड़ां च एक दो ने। कोटन में नानक को
नारायण जय जीत। कोई बहुत वड्डी गिनती नहीं है। प्रहलाद धार्मिक है लेकिन रब्बी रस अपने प्यो को नहीं दे सके। और प्रहलाद इतना वड्डा भगत है, 4-4 दिन प्यो ने भुखा रखे है, लेकिन ये भुख दे च भी नाम जपदा रहा। लोकी भरे पेट नाल भी नहीं जपते। वो जेल दी तंग तारीक कोठड़ी दे च भी प्रभु दे गीत गांदा रहा। लोकी अपने महलों दे च भी नहीं गांदे। वो तरह तरह दे तसैये सहारदा आया भी प्रभु दा शुकराना करदा रहा। तरह तरह दियां सौगातां प्राप्त करके भी लोकी शुकराना नहीं करते। वो इस तरह का भगत। उम्र की है 5 साल। तदी ते कबीर कहने राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। मीरा धार्मिक है। मीरा दा पति चित्तौड़गढ़ दा राणा धार्मिक नहीं है। उन्हें घरों ही कढ़ दिता सी। जिन्होंने इतिहास नूं पढ़िया है उन्होंने कहा सी मैनू पत्नी चाहिए, संतनी नहीं चाहिए। इतने मेरी संतनी मेरे पल्ले बन दी। इतने हर वक्त गीत गाती रही है परमात्मा दे। इतने पता नहीं किहड़े लोक दियां गल्लां करती रही। चित्तौड़गढ़ दे राणे दा मीरा बाई नाल तालमेल नहीं बैठिया। और मीरा हर वक्त प्रार्थना करती सी, हे प्रभु इतना रस तो मेरी झोली च पा दिता है, डुल डुल के पैंदा है, थोड़ा जिहा मेरे पति नूं भी दे दे। प्रार्थना भी करती सी पर नहीं, उस पति ने तो घरों कढ़ दिता। पहले मारन की कोशिश की जान तो, जहर का प्याला दिता पी गई नहीं मरी। सप भेजिया डंग मारन वास्ते, उन्हें डंग नहीं मारिया, फिर घरों कढ़ दी। राजस्थान के जंगलों के भटकती रही क्योंकि कोई शहर दे नहीं वड़न देंदा सी, मंदिर दे दाखिल नहीं आउण देंदा सी। दरख्तां तले बैठ के एक तारा वजा के प्रभु दे गीत गांदी रही। जिन्हां जिन्हां दरख्तां दे थले इसने गीत गाए, अज राजस्थान दे उन्हां राजे महाराजियां ते जागीरदारां ने सोने दे मंदिर खड़े कीते ने। सारा मार्बल लाया, सोने दे कलश लाए ने। मीरा धार्मिक सी, उसका पति धार्मिक नहीं सी। त्रिलोचन धार्मिक सी, उसकी पत्नी धार्मिक नहीं सी। एक शब्द त्रिलोचन ने अपनी पत्नी के प्रति उच्चारण किया। त्रिलोचन अमृत वेले उठ के परमात्मा के गुणों का उच्चारण करता है, पर यह भी अमृत वेले नाल उठ के गालां ही कढ़दी है रब नूं। एक परमात्मा की सिफत और सलाह करता है, एक परमात्मा की निंदा करती है। शब्द है नारायण निंदस काय भूली गवारी, त्रिलोचन जी का। ऐ गवार ऐ ना समझ एक ही कर दी है अमृत वेले। सिफत और सलाह का वकत निंदा कर दी है। नारायण निंदस काय भूली गवारी, दुखरत सुकरत थारो कर्मरी। दुखी बहुत सी, तन करके करोगी सी ते अधकड़ उम्र हो गई सी, औलाद भी नहीं सी, बच्चा भी नहीं सी। तो कहती सी इस नारायण ने की दिता है सानू, इहदे गीत गाइए। रोग दिता है, रोगी तन दिता है, ते बे औलाद, औलाद कोई नहीं। की लोड़ है इसकी सिफत तो सलाह करने की। त्रिलोचन समझाते ने दुखरत सुकरत थारो कर्मरी, दुख सुख ते तेरे कर्मां दा फल है। दुख सुख ते फल है, ते जे फल है तो उसका बीज है, उसका बीज है तेरे कर्म। ते पहले ही तू दुख भोग रही है, तो फिर वो बीज बो रही है जिस तो होर दुख पैदा होगा, और दुख पैदा होगा। समझाते ने त्रिलोचन अपनी पत्नी ने सारा शब्द अपनी पत्नी के प्रति उच्चारण किया।
लेकिन पत्नी भी आखिर त्रिलोचन दी सी। कहन लगी जिस दी बंदगी करन नाल, जिस दे गुण गायन करन नाल कीते कर्म मिट ही नहीं सकते, तो फिर गुण गायन करन दा मतलब की है? सिफतो सलाह कर्म दा मतलब की है? बड़ियां दलीलां दित्तियां त्रिलोचन ने। कीता कर्म नहीं मिटता, कृत कर्म नहीं मिटता। और फिर इस शब्द दी अखीरलियां पंक्तियां, चूंकि इस वक्त प्रकरण नहीं है मेरा, पूर्वलो कृत कर्म न मिटेरी घर गहन नहीं मिटता। पूर्वलो कृत कर्म न मिटेरी घर गहन, तांचे मो जापी अले राम चे नामंगे। इस वास्ते में प्रभु का नाम जपदा, कर्म तो मिटना ही नहीं। पर त्रिलोचन की पत्नी आखिर त्रिलोचन दी, ते जे मिटना ही नहीं तो राम जपण का मतलब, मिटना ही नहीं तो प्रभु की बंदगी का मतलब है। प्रभु की बंदगी मनुख की सुरत नूं, मनुख के ध्यान नूं इतना उच्चा कर देती है, दुख सुख उसके पैरों के थलों लंघ जाते। नहीं तो अक्सर मनुखा नूं किधरे सुख हिला के रख देंदे, किधरे दुख हिला के रख देंदे। कोई सुख करके अयाश ते बदमाश हंकारी हो गया है, कोई दुख करके बेचैन ते बेहाल हो गया है। रस्ते दा रोड़ा बन गया किधरे सुख, रस्ते दा रोड़ा बन गया किधरे दुख। कोई दुखां दे रोड़े नूं नहीं हटा सकिया, कोई सुखां दे रोड़े नूं नहीं, रुक गए ने। पर ओ मनुख कसौटी ते पूरा उतर गया, रोड़ियां दे उपरों लंघ आया है। रोड़े ते कोई गल नहीं, असी रुकना नहीं है। दुख ते कोई गल नहीं, न सुख ने हिलाया न दुख ने हिलाया। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे बोल, जो नर दुख में दुख नहीं माने। दुख ते आया है, पर हुण दुख मन नूं नहीं छूंदा। अगर तन नूं छू भी गया तो ठीक है। हुण उस दुख दे प्रति मन विच शोक नहीं पैदा होंदा, चिंता नहीं पैदा होंदी, दुख नहीं पैदा होंदा, संताप नहीं पैदा होंदा। कोई बारों औकड़ आ गई है, कोई गल नहीं। कोई तन विच रोग पैदा हो गया, कोई गल नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके। ते सुख नाल कोई इतनी हुण पकड़ भी नहीं रहेगी, कोई बहुती पकड़ भी नहीं रहेगी। नहीं तो अक्सर मनुख की जिंदगी इंज बतीत होती है, दुख सुख करत जन्म फुन मोआ। दुख दे च रोंदा रहा, सुख दे च हसदा रहा, आखिर मर गया। यही मनुख की जिंदगी होर की है। मैंने एक छोटी जी गाथा याद आई है। ईरान के शहनशाह ने किधरे फिरदौसी नूं कहा, मैं सारे संसार दियां इतिहासक घटनावां नूं जानना चाहना। सारे संसार, हर मुल्क, हर कौम विच जो इतिहासक वाक़े होए ने, जो काबिले दीद होवन, काबिले शुनीद होवन, वो मैं जानना चाहना। तो संसार दियां सारियां ये महान घटनावां लिखती रूप विच मेरे सामने लिया। फिरदौसी शायर से और आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी फिरदौसी नूं सन्मान देंदे ने। जफरनामा लिखिया है औरंगजेब नूं, जित दी जो चिट्ठी लिखी है, जफरनामे का मतलब जित दियां चिट्ठियां। उहदे च धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, चे खुश गुफ्त फिरदौसीए खुशतर जवां के जूदी बवदकार आहिर मना। औरंगजेब चल तो मेरी गल नहीं मननी सी ते ना सही, किसे होर संत महापुरुष की गल नहीं मननी सी ते ना सही। कम से कम तेरा दीनी भिरा
इस्लाम नूं मनण वाला फिरदौसी ओदी गल ही मन लैंदा। कितना सोहना उसने लिखिया है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। चे खुश गुफ्त तो फिरदौसी खुशतर जबां, कितना उसने चंगा लिखिया है, कितने चंगे बोल उसने बोले ने, कितना महान दर्श दिता है उसने जगत नूं कि जूदी बवद कार आहिर मना। जल्दबाजी करना शैताना दा काम होंदा है, जल्दबाजी दे ध्यान गहरा नहीं जाता। तू इतना जल्दबाज मनुख है, उसी जल्दबाजी तू अपने प्यो नूं जेल च पाया, उसी जल्दबाजी तू अपने तिन्ने भरा कतल कीते, उसे जल्दबाजी दे च आके तू अपनी वड्डी बहन जहां आरा नूं गुत्तों धरो के जेल दे च पाया। वो दारे दा पक्ष लैंदी सी, प्यो दा पक्ष लैंदी सी, औरंगजेब दी मुखालफत करदी सी। और मूंह दे ते औरंगजेब नूं उदों गालां कढण लग पई जदों पता चलिया कि औरंगजेब ने दारे नूं भी कतल कर दिता है। दारा फकीर तबीयत बंदा सी, दानी सुभाਅ दा भी सी ते ज्ञानी भी सी, शायर तबीयत भी सी, उसनूं भी कतल कर दिता। ते जद जहां आरा गालां कढण लगी, औरंगजेब नूं झाड़न लगी, गुत्तों धरू के उसनूं भी बंद कीता। 7 साल जेल दे च रही है, मरी भी जेल दे च। महाराज कहंदे ने गुरु गोबिंद सिंह जी, कम से कम तू फिरदौसी दी गल मन लैंदा। जल्दबाजी ते शैतानां दा काम आउंदा है ते तेरे हर काम दे ते शैतानियत दी मोहर लगी है, क्योंकि तू जल्दबाजी कीती है, गहराई नाल सोचिया ही नहीं, किसी गल दी जो है तह दे जो है तू गया ही नहीं, गहराई दे जो है तू गया ही नहीं, उसनूं समझण दी तू कोशिश ही नहीं की। चे खुश गुफ्त फिरदौसी खुशतर जबां कि जूदी बवद कार आहिर मना। अब दी गैतली अर्ज करा, दुख सुख कसवटी है, कोई दुख ते पूरा नहीं उतरदा, कोई सुख ते पूरा नहीं उतरदा। बथेरियां नूं सुख ने रोक के रखे होया है, बथेरियां नूं दुख ने रोक के रखे है। कोई इतना सुखियारा है, इतना सुखियारा है, अमृत वेले उठ के नितनेम वाहिगुरु मंत्र नहीं जप सकता। कोई दुख करके इतना बेचैन है, इतना बेचैन है, नहीं जप कर सकता। कोई इतना सुखियारा है, इतना सुखियारा है, थिएटर क्लब जुए खाने शराब खाने दे दरवाजियां दा इसनूं पता है, गुरुद्वारे दा ते रस्ता ही भुल गया, धर्म मंदिर दा ते रस्ता ही भुल गया। और कोई इतना दुखियारा है, इतना दुखी है, इतना बेचैन हो गया, इतना परेशान हो गया, गुरुद्वारे आने नूं इसदा जी नहीं करता, दुख इसनूं आण ही नहीं देंदा। कोई दुख दी कसौटी ते पूरा नहीं उतरदा, कोई सुख दी कसौटी ते पूरा नहीं उतरदा, और परमात्मा दी होर कोई कसौटी नहीं है, यही कसौटी है। कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोय, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। राम दी कसौटी की है दुख सुख, कोई दुख ते पूरा नहीं उतरदा, कोई सुख ते पूरा नहीं उतरदा। किसी दा सिखी सिदक दुखां दे अथाह जल दे डुब के रह जाता है, गर्क हो जाता है, उहदी सिखी गर्क हो गई, उहदा नितनेम डुब गया, उहदी रहत बैत डुब गई, सब कुछ डुब गया। और कोई सुखां दे गर्क होके रह जाता है, गुरु दी मोर डुब गई, गुरु दी रहत बैत डुब गई, नितनेम डुब गया, अमृत वेला डुब गया, सतसंग डुब गया, गुरबाणी दा पाठ डुब गया, सब कुछ गर्क हो गया। किसी दा सुख दे च डुब गया, किसी दा दुख दे च। महाराज गुरु नानक देव जी ते कहंदे ने, मैं ते देखदा हम देखा तैं डुबे हले, सब डुबे पे ने, सब गर्क होए पे ने। किसी नूं सुख ने गर्क करके रख दिता है, किसी नूं दुख ने गर्क करके रख दिता है। दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, कदी दुखी कदी सुखी, कदी सुखी कदी दुखी, आखिर मर गया।
ਫਿਰਦੌਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੋ ਤਵਾਰੀਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਾਂ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੇ ਤਵਾਰੀਖੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, कम से कम 6 महीने। बादशाह ने कहा, ठीक है, 6 महीने मैं उड़ीक करांगा, तू सारे संसार दियां इतिहासक घटनावां नूं लिख के लियावेगा और मैं उसनूं पढ़ांगा जगत दे अज तक की कुछ होया है। 6 महीनों बाद 10 सैंचियां 10 पोथियां दे रूप विच फिरदौसी ने बादशाह दे अगों ये पोथियां रख दित्तियां। जहां पनाह, तुसीं कहा सी संसार दा इतिहास अपनी तरफों कोशिश की है, जो मुख मुख हादसे होए ने, जो मुख मुख उपलब्धियां होईयां ने वख वख देशां विच, मैं कलम बंद करने की कोशिश की है। पढ़ो। थब्बा पोथियां दा देख के कहन लगा, है तू निरा मैनू वेला ही समझ लिया, यही पढ़ता रहा। छोटा करके लिया, शॉर्ट कर। ना इतना मेरे को समा किथे, इतना मेरे को वक्त किथे, तो इसका छोटा रूप बना। इतिहास कहता है विचारे नू 4 महीने फिर लगे 10 पोथियां नू 4 पोथियां दी शक्ल देण दे। वड्डे वड्डे हादसात उसने रहन दिते, वड्डे वड्डे उपलब्धियां जो वख वख देशां च होईयां वो ते रहन दित्तियां, बाकी कट दित्तियां। 4 सैंचियां जब अगों रखियां, बादशाह कहने लगा, अजय भी ज्यादा है, मेरे को वक्त नहीं है, मैं बहुत मसरूफ, मैं बहुत मसरूफ। शायर अपनी तबीयत नाल लिखदा रहा है, शहनशाह दी अपनी तबीयत, इसनू छोटा कर। भावें फिरदौसी ने उस दिन आख्या, जहां पनाह, जो मैं लिख चुकिया उन्होंने छोटा करने कम से कम 4 गुणा मेहनत होर लगेगी। दुध नू लस्सी बनांदियां देर नहीं लगती, पानी पाई जाओ। दुध नू खोया बनांदियां देर लगेगी, दुध नू घ्यो बनांदियां वक्त लगेगा। ठीक है, होर मैं छोटा करदा। एक किताब की शक्ल विच लिया, सिर्फ एको ही कॉपी, एको ही किताब। बादशाह ने कहा, नहीं, इस तो भी छोटा, ये भी 500 सफियां दी तू पोथी लेके आ गया, मैं नहीं पढ़ सकता, इतना नहीं है समा मेरे को। बेचारा छोटा करन लगा और शहनशाह दे स्वभाव का भी उसनूं पता सी। शायर सी, फकीर सी, और उसके सुभाव नूं जानदा सी। अज जद महलों विच दाखिल होया ते बादशाह बिस्तरे मरग ते पिया, आखिरी दमा ते दम तोड़ रहा सी। शाही तबीब कोल बैठे, फिरदौसी आया, कहंदा, शहनशाह, मैं संसार का इतिहास लिख के ले आया, बहुत छोटे रूप विच, बहुत छोटे रूप विच। किथे किताब उसने हथ किया अगों, कहंदे ने किताब की लोड़ नहीं, मैं सिर्फ एक लम्हे विच सुना सकदा थानू, एक लम्हे विच, भाव 1 मिनट दे, इतना ही इतिहास है। ये बादशाह कहंदा, मेरा आखिरी दम टुट जाए, सुना दे, छेती सुना।
ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਕਰਤ ਜਨਮ ਫਨ ਮੋਆ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦਈਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਸੁਖ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। कभी दुख ने इतना बेहाल कर दिता जबान ते वाहिगुरु नहीं आया, कभी सुख ने इतना सुखियारा कर दिता, आलसी कर दिता, अमृत वेला खो गया, नितनेम खो गया, जब तब खो गया, अखीर नु मर गए। दुख सुख करत जन्म फन मुआ, हर मनुख दी यही दास्तां है। इस कथा तो इलावा होर की कथा है? कोई दुख करके रुके आया है, कोई सुख करके रुके आया है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते अगर कोई परमात्मा का नाम सुने सुख उसनों डोबेगा नहीं, रोड़ा नहीं बनेगा। जनक लिए रोड़ा नहीं बनया, महाराजा रणजीत सिंह लिए रोड़ा नहीं बनया। राज में राज जोग में जोगी, ते जो बारों राजा सी ते अंदरों जुड़े होया जोगी सी। भाई गुरदास जैसी आत्मा नूं भी कहना पिया, भगत वड्डा राजा जनक है, गुरुमुख माया विच उदासी। तो वीर जी आप अज की वीडियो च देखा कि संत सिंह मस्कीन जी जिस तरह दसते पे है कि साडी जिंदगी जिहड़े दुख तकलीफां या परेशानियां होंदियां ना, इन्हां दा कारण यही हुंदा कि जिहड़ा असीं दूसरिਆਂ ਨੂੰ दुख तकलीफ परेशानी दिंदे, जिहड़े बुरे साडे काम है ना उन्हां दी वजह हुंदी है। क्योंकि अगर असीं जो दूसरिਆਂ ਨੂੰ दुख दांगे तो किस तरह हो सकता वीर जी कि सानू खुशी मिले। बिल्कुल वीर जी, देखो ये मिसाल भी बनी है कि कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। जे किसी ने असीं चंगा काम करांगे तो सानू रब की तरफों, अल्लाह पाक की तरफों, वाहिगुरू की तरफों साडी आटोमैटिकली पुठियां भी सीधियां वीर जी पै जाणगियां। बिल्कुल वीर जी सही कह रहे हो कि जिल्ले असीं दूसरिਆਂ ਨੂੰ खुशी दांगे, दूसरिਆਂ वास्ते आरामदेह कोई जरिया बनांगे ना, तो साडे भी जिहड़े पुठे काम है ना वो आप ही सही होना शुरू हो जाएंगे, बिगड़े काम भी ना ठीक होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि असीं दूसरिਆਂ वास्ते चंगा सोचने हैं, तो जो असीं दूसरिਆਂ लिए माड़ा सोचांगे तो फिर सानू भी तकलीफां मिलणगियां। ये तो इंज ही है ना कि जो तुसीं बीजना वो ही कटना। तो यानी कि अगर तुसीं चंगे काम करोगे तो उहदा सिला तुहानू अल्लाह सोना चंगे दे देगा तरीके ना, अगर माड़े काम करोगे तो वो फिर माड़ा दुनिया च भी सज़ा मिलेगी तो अगले जहान च भी सज़ा मिलेगी। तो इस करके वीर जी इंसान नू एक पॉजिटिव सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान देखो उसकी मदद करनी चाहिए है, चाहे वह भैन भरा है, चाहे वह हमसाया है, चाहे वह कोई भी तुहाडा मुसलमान है या कोई भी गैर मजहब है। सब तो पहले वीर जी इंसानियत है। इंसानियत नू जिले तरजीह देवांगे तो सानू अल्लाह पाक की तरफों, वाहिगुरू की तरफों सानू आटोमैटिकली सानू साडे राह, साडियां रुकावटां, साडियां मुश्किलात वो दूर होंदियां जाणगियां। बिल्कुल वीर जी सही कहा तुसीं कि सानू धर्मां तो हट के ना तो इंसानियत के बारे सोचना चाहिए, उहदी मदद करनी चाहिए इंसानियत की। जे असीं धर्मां दे चक्करां 'च पै गए तो फिर तो असीं लड़ाइयां दे विच ही रहांगे, असीं किसी की मदद नहीं कर सकते। तो इस करके वीरो धर्मां तो बाहर निकल के इंसानियत का सोचा करो, इंसानियत का भला करया करो। बड़ी वधिया कथा सी। तुहाडा इस बारे की ख्याल है? कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार लाजमी करियो। अपना रखियो ढेर सारा ख्याल। रब रखा।